Hi, good morning, students. I hope you can hear me. Good morning, Vanshika. I guess students are still joining. I can't help being a police officer, so I'm dot on time. Can't help it. Uh, Good morning, Varun. All of you are joining. So, good morning, Kartike. Good morning, Swati. Good morning, Gurleen. Priyanshi, good morning. Thank you, Varun. It is something I want you all to inculcate. I'll be talking about it. Meera, good morning. Shashank, good morning. Gitanjali, good morning. Aman, good morning. Abhinav, good morning. Good morning. Vishwas, Bhavna, good morning. Rahul, Ankita, Pulkit, good morning. Vijayant, Pavanpreet, Hina, Aman, I'm good. Thank you, beta. Thank you, Jagriti. Thank you. Good morning, Kapil. Good morning, Saksham. Good morning, Sukhveer. Good morning, Prashant. Thank you, beta. Thank you. Akanksha, good morning. Akash, good morning. Jagriti, Gurpriyar, good morning. Krati, Vijayant, Gaurav, Shekhar, all very good morning to you. Shubham, I'm good. Thank you, beta. Bharat, good morning. Priyanka, Gunjan, Karuna, Simran, I'm good. Thank you. Krati, I'm good. Devendra, good morning, beta. Urvashi, good morning. Rajat, good morning. Shrishti, thank you, Aman. Thank you so much, beta. I also eagerly wait to teach you all. It's my passion. Sachin, good morning. Gaurav, good morning. Thank you, Gaurav. It's just that it's my passion. Vinita, good morning. Sulagna, good morning. I'm good, beta. I'm good. Thank you. Smriti, good morning. Gaurisha, good morning. Yes, it will be starting on 15th, Vinita, in full swing. 5 lectures a day. Good morning, Ankit. Swati, good morning. Ashmin, good morning. Today I'm going to have a very, very important lecture because this is the first lecture I always give. It's very important for us to know. Good morning, Kumar. Tarun, good morning. Ayushi, good morning. Divya, new batch will be foundation batch. Yes, it's a complete foundation batch. Divya, everything will be going to absolute details of every word. Krati, thank you. You'll get the best in the country. That I can assure you. Daily routine. I'll be talking. I'll be talking about that, Varun. Yes, I'll do that. I'll note it down so that in the end I talk to you about my daily routine. You can also think what all doubts you have so that I'll be batch will be bilingual. Yes, Kartike, it will be bilingual. I'll try to cater to all the students because we have pan India batch. So I'll try to make every student so as comfortable. God bless you, Varun. Mahima, good morning. Mamtha, good morning. Sangeeta, good morning. Priyanti, I'm taking care of myself and I want you also to take care of yourself. I'll be talking about that today. Syllabus difference of various states. Okay, Vishwas. Just in case I forget, please remind me in the end of the lecture. I'll talk about that. Good morning, Vijay Pal. Retirement. Okay, I put in about 27 years of IPS, and moment I was going to become an ADG, I decided to go for the golden handshake, and started teaching and started producing judges. Yes, I'll be giving you tips on answer writing, Krati. Yes. Mains of Rajasthan, no, I'll talk about that. I'll talk about that. Okay. Also, please ask me this question just in case it skips. Karuna, when I'm excited to teach you all, I'll do that. Pulki, don't worry. I'll cater to everything. Good morning, Suvarna. How to stay focused. Don't worry. I'll be telling you that. I'll be telling you that. Vijayant,
Yes, beta, I took my voluntary retirement, Vijayant. In fact, I was a very uh, famous IPS officer. Movies were made on me. Uh, how to stay focused? I'll be teaching you that. Good morning, Dipendra Rathod. Please give us the direction how to prepare third year. Okay. Swati, there was a movie called आमिर खान की आई थी मूवी जैसलमेर के दिनों पे थी. गुरिंदर, इट वाज आमिर खान की थी जो सरफरोश. Yes. How to make? I'll be teaching you that, Puneet. I'll be teaching you. Okay. I think still students are joining. Firstly, we must have this habit. Can I share this session, everyone? Kartike, yes, you can share. Actually, what happens is the first thing which we must learn in life is discipline. The word discipline is the key word. Whenever I have a class at 11, I've opened my computer, I've joined the class at 10:45. I've got everything ready by 10:30, and by 10:25 I'm absolutely mentally ready to do it. I'll be teaching you all. Yes, it will help you to prepare Bihar judicial examinations. Somebody showing a confused emoji. What's the confusion? Okay, now let's start. Because this is I would like to have a long heart-to-heart talk with you all. Good morning, Shiv. Archana, good morning. Actually, I want none of you to miss this class because this is one class I give only once in a year. Good morning, everybody. Okay. Shruti, good morning. Okay. Ankit, good morning. Gurdeep, good morning. Because actually, I want to start in a flow, and then I want that no one should be missing this lecture. Happy morning, Jay. Happy for you also. Okay. Namaskar, Surendra. God bless you, beta. Access for local laws. Okay. Let's see how many. A few states, of course, we are covering all the local laws. Okay, let's start. Fine. Now, our today's topic is how to succeed in judicial examinations. I'll request everybody to keep their questions right till the end of the lecture so that I'll speak in a flow and then you can shoot off all your questions to me. I'll answer. So this is my request that please hold on to your questions so that my chain of thought does not break. So let's start from the very beginning. Till everybody who's joining is basically joining with one aim to become a judge. आज के दिन में दो प्रीमियर सर्विसेज हैं, या तो यूपीएससी है और या फिर जुडिशरी है. Fortunately, I've had the experience of both, in the sense that I was in the UPSC, I got through my IPS in the very first attempt, and I have been instrumental in the selection of more than 350 judges till now. मैंने दोनों बहुत क्लोजली देखी है दुनिया. जो चीज कॉमन है दोनों में वो है कंपटीशन. And that is why competition needs what I will call a mindset. Firstly, when we are coming here, we are coming with a dream. After doing our law, there are thousands and thousands of persons who are doing law every year. They actually do law without any aim. कि चलो कुछ तो करना है, वकील बन जाएंगे. वकील भी बनना चाहो तो you don't have
you don't get your success till maybe 10 years, because you end up as a junior and senior will ask you adjournments ले आओ, ये type करा के ले आओ. Whatever they when you go to the court, वो जो बोल रहे हैं आपको लगता है वाओ सीनियर कितना यार knowledgeable है, हमें तो कुछ नहीं आता. उसका रीजन क्या है? All of us have done LLB in the same way. We have just studied 5 questions and we have got more than 60% marks. There's a truth which all of us know. None have very few, except just a very few. None have gone into the nitty-gritties of law, the details of law, the nuances of law. And this is the reason why when you do your LLB, suddenly you feel मैं कहाँ, मैं क्या करूँ? You know, because no career is opening up. थोड़े दिनों में जब आप कोर्ट जाते हो आपको लगता है कुछ टाइम वेस्ट करके आगे 5-6 हज़ार रुपए देता है सीनियर, मैक्सिमम जो बहुत अच्छे होते हैं 7-8 हज़ार दे देते हैं. यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग. एज ऐसी आ जाती है, यू नो, टिल यू आर अ स्टूडेंट, तब तक तो आपको लगता है चलो स्टूडेंट हूँ, LLB चले गए, पॉलिटिक्स ये वो मस्ती. बट मोमेंट यू फिनिश योर LLB, you suddenly are in the wide world with absolute darkness, and एक fear आता है, क्या करूंगा मैं आगे. ये आपको भी नहीं, मेरे को भी आया था, सेम. I have gone through all the stages. So as a result, one actually gropes in the dark. उस टाइम पे होता है कि चलो एक, यू नो, एवरीबडी, हर इंसान की जरूरत है कि वो पावर ले, पैसा ले, ताकि उसकी इज्जत हो. एंड प्लस मनी, ऑफ कोर्स, विदाउट मनी लाइफ नहीं चलती. अगर आप सिर्फ एडवोकेसी में जाएं विद अ सिंपल LLB नॉलेज जैसे हम लोगों की होती है, तो 10 साल लग जाते हैं आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, वो भी इफ यू आर वेरी लकी. दूसरा होता है कि वी कम विद अ ड्रीम दैट आई विल बिकम अ जज. Everybody wants to become an IAS officer, an IPS officer, a judge, a judiciary. बट प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारा पहला पॉइंट होता है कि चाहे हम ऊपर से तो कहते हैं मुझे जज बनना है, पर अंदर से डर है कि मैं नहीं कर सकता. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच वी फेस. वी फील नहीं वो कर सकता है, मैं इतना इंटेलिजेंट थोड़ा ना हूं, मेरी इतनी नॉलेज थोड़ा ना है. सबसे पहले मेरा पहला पॉइंट, माइंड सेट. द फर्स्ट थिंग, गोल्डन रिमेंबर, एक मेरी लाइन हमेशा फेमस है जो मैं हमेशा बार बार रिपीट करता हूं. They can because they think they can. Remember these lines. You can because you think you can. इसीलिए बेटा, I would like you to please refrain from comments. बेटा बिल्कुल मुझे बस खत्म कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं पूरा आपसे 15-20 मिनट जितना कहोगे उतना एक्सटेंड करूंगा. आज मैं सबको क्लियर करके जाऊंगा माइंड. जस्ट लेट मी गो इन माई फ्लो. मैं क्योंकि एक्सटेम्परी बोलता हूं, मेरा वो फ्लो टूट जाता है बेटा. तो बेटा माइंड सेट सबसे पहले, इसलिए जज नहीं बनना कि बाकी बन रहे हैं. सबसे पहले मेरे अंदर फायर चाहिए. आई नीड अ फायर. दैट फायर इज आई विल बिकम अ जज. एज आई यूज द वर्ड इन लॉ, आई शैल बिकम अ जज. कोई रोक नहीं सकता मुझे. व्हेन आई स्टार्टेड फॉर माई IPS, आई डिसाइडेड कि मैं बन के रहूंगा. मेरे फादर मुझे कहते थे बेटा UPSC पता नहीं बनेगा कि नहीं, बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर का दे दे. ऐसे ना, दूंगा तो एक बार ही दूंगा और निकलूंगा. और निकला. नॉट दैट आई एम मोर इंटेलिजेंट, यू आर फार मोर इंटेलिजेंट देन मी. आज के आपके बच्चे में हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है. ओनली थिंग नीडेड इज द फायर. आई एम द बेस्ट. ये हमेशा याद रखना है. यू आर द बेस्ट. सबसे पहला स्टेप, वो फायर अपने अंदर किंडल करो. दैट आई कैन डू इट, आई शैल डू इट. Nobody can stop me from doing it. So you start living your dream every day. I do not want you to have any inhibitions in your mind. I do not want to have this feeling, I cannot do it. Change the word I cannot do it to I can do it, I shall do it. I promise you this. You work with this feeling with me. 1 year, 13 months maybe I will take with you, because I'm going to take your tests very regularly. After 13 months, I promise you,
you will be the best in the country. Wherever you will go, you'll go to lower courts, you will feel these are not meant for me. I'm meant for higher courts. I'm talking out of experience of 5,000 students which I've taught till now. All of them could not become judges. 300-400 बन गए. But the rest, लॉ ऑफिसर्स बन गए हैं. 250-300 तो मेरे एपीपी बन चुके हैं. Though I'm not happy with APPs, because जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूं, nothing less than a judge. I don't accept anything substandard. ठीक है, फॉर द टाइमिंग कमाने के लिए आपने एपीपी बन गए, पर मुझे जज ही चाहिए. एंड देयर इज नो रीजन. व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर नॉट बिकमिंग अ जज? ए, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं मिली, मुझे टीचर अच्छा नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आया. आज भी जब मैं ये बेयर एक्ट्स इतने सारे मेरे सामने पढ़े हैं, ये सारे के सारे एक्ट्स आज भी मेरे लिए ग्रीक हैं. ऑल दीज आर काला अक्षर. ये कारण हो सकता है. अगर ये कारण नहीं है तो देन देयर मीन्स समथिंग. नाउ इट इज पर्सनल कारण. वो पर्सनल कारण क्या है? पहला, एज आई सेड, others are too good, I am not. Others have studied in a convent, others have studied in a public school. मैं तो एक साधारण से स्कूल में पढ़ा हूं. मुझे कॉम्प्लेक्स है. किस बात का कॉम्प्लेक्स है? लेट मी टेल यू वन थिंग. मेरे पिछले 3 साल में अप्रोक्सीमेटली 150 जज बने हैं इस 3 साल में. आई एम स्वीपिंग द, मेरे बच्चे स्वीप कर रहे हैं. कारण क्या है? और उनमें लेट मी टेल यू 60% रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनको मैंने, जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूं, आप सबको मैं इंटरव्यू की तैयारी पर्सनली कराऊंगा. आई विल, जो बहुत दूर रहते हैं उनको तो खैर ऑन बाय नेट पे कराऊंगा, बट अदरवाइज आई इनवाइट यू कि मेरे पास आके रहो. जब मैं उनको तैयारी कराता था, तो जब मैं उनको बोलता था व्हाट इज योर नेम, सर माई सेल्फ, मैं कहा बेटा आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, यू गो टू द इंटरव्यू बोर्ड एंड से सर प्लीज, मैं एक छोटे स्कूल में पढ़ा हूँ, आई वाज नॉट अ वेरी, मैं अमीर आदमी बच्चा नहीं हूं, तो सर कह रहे हैं आंसर योर इंटरव्यू इन हिंदी. 99 क्या 100% टाइम्स दे हैव सेड यस यू कैन. सो पहला डर ये खत्म कर दो कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो मुझे तो, मेरा तो चांस ही नहीं है. जैसे ये अंग्रेजों का राज नहीं है. दो I don't have a right to say this because I have also studied from a convent, but I have taught so many people. Now, पहला point, English is not, spoken English or vocabulary English is not your Achilles heel. It is not something which you should be ashamed of. अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखो, आर्टिकल 345, आई थिंक उसमें लिखा है हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज एंड वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ इंग्लिश एंड इंट्रोड्यूस हिंदी एवरीवेयर. सो पहला पॉइंट मेरा ये है. फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट हैव एनी inferiority complex. I do not want you to have any inferiority complex. Let me give you a very recent example. In this last result which came Punjab ka, 11 of my students became judges. In that there was one boy whose father, and I am proud to say, is a laborer. He did not have money even to finish his schooling. He did his schooling through scholarship. He started earning by doing errands, practicing. And then when I started talking to him, I made this very aspect of his strength. I said, beta, when you start, you know how you introduce yourself. Sir, I am so and so. I come from a very humble background. My father is a laborer. Moment he said this, the board stood up. They looked at him aghast. Then they said, okay. They asked him very difficult questions. Fortunately, we had prepared him for interview. And immediately he was selected. So please, one thing we must remember. English is not our Achilles heel. Agar mera English pe command nahi hai, so this is absolutely no reason to have an inferiority complex. Number one. Number two. All competitions are mind games. It is all a question of mind. If we can, we shall.
तो पहला मेरा, आज मेरे स्टूडेंट्स, खासकर मेरा बैच जो शुरू होने वाला है, उस टाइम पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है. दिस इज द टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू टुडे. फर्स्ट बिल्ड दैट फायर फ्रॉम टुडे. ईट, ड्रिंक, ब्रीथ, जुडिशरी, नथिंग एल्स. मुझे सिर्फ जज बनना है और कुछ नहीं बनना. एंड नथिंग विल स्टॉप यू. फर्स्ट पॉइंट. नाउ व्हेन आई से ईट, ड्रिंक, ब्रीथ, जज, जुडिशरी, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स. मैं पहले बात कर रहा हूं माइंडसेट की. आई एम नॉट कम टू द लॉ पार्ट. अभी तक बात नहीं की मैंने. नाउ हाउ डू आई डू? सबसे पहला, मुझे अपना माइंड डिसिप्लिन करना है. मुझे अपना पूरा दिन डिसिप्लिन करना है. What do I say? What do I mean? I have to discipline my mind, my day. Right from morning to night, I will make my timetable. I have followed it. I'm 60 plus now. For last 50 years, I've been following this timetable. I sleep in the right time. I get up at the right time. There are no parties for me because I have an aim. So I have an aim. जैसे होता है ना, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आती थी. आई वॉन्ट आपको सिर्फ एक ही आंख नजर आए कि मुझे जुडिशरी करनी है. एंड ऑल ऑफ यू विल मेक इट. ऑल, कैपिटल ALL. उसके अंदर सबसे जरूरी क्या है? एक डिसिप्लिन रखो. पहला, डिसिप्लिन से सोना है. मेक दिस अ हैबिट दैट यू मस्ट स्लीप फॉर 7.5 hours a day. This is a must. So gone are the days when you are watching TV till 2 o'clock and you're getting up at 10 o'clock. No, this is just not acceptable to me. You will sleep at 10:30, you will get up at 6 o'clock. This is the first lesson. Every day you will sleep, and now you will be watching TV, but not watching these trash serials which only, pollute our minds. I want you to watch इंफोटेनमेंट चैनल्स, डिस्कवरी वगैरह, बहुत सारे 10-20 इंफोटेनमेंट चैनल आते हैं. आई वॉन्ट यू टू वॉच दोज एंड इंक्रीज योर होराइजन ऑफ योर नॉलेज. पहला. दूसरा, डिसिप्लिन पहला हो गया स्लीपिंग. दूसरा, डिसिप्लिन ऑफ ईटिंग. इफ वी आर नॉट हेल्दी, वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो. टू ग्रो, वी नीड टू बी हेल्दी. How do we make ourselves healthy? Be careful of what you are putting in your mouth. Have I taken my nutritious food? Have I taken my everyday fruits? Many of you may not be able to afford. I agree. But एक दाल रोटी जो इंडिया की बेसिक स्टेपल खाना है, that is enough. अगर आप अच्छी तरह खाएं, दाल रोटी दही. I want you to eat natural foods. I want you to just say no to pizzas and junk foods because I want to make a healthy body for my healthy mind. You'll be surprised to know I have not touched junk food for maybe decades now. And somebody was asking me what is my everyday routine. Well, I'll tell you. I get up in the morning at 6. I first have a cup of tea with 2 biscuits. After that, I have my 3 juices, fresh juices: amla juice, wheatgrass juice, and my carrot or beetroot juice. After that, I have my bowl of fruit. Fruit वो भी सस्ता वाला, ये नहीं कि मैं वही exotic fruits मंगाता हूँ. केला with few almonds and 1 or 2 walnuts. ये मेरा ब्रेकफास्ट हो. जाते वक्त मैं तैयार होता हूँ. उसके बाद जाते वक्त I have 1 मिस्सी रोटी without any oil and a bowl of dahi. Years. सारा दिन खड़ा होकर पढ़ाता हूं. मेरे बच्चे जो पुराने जानते हैं. And throughout the day I have 1 or 2 cups of black coffee or black tea, and in the afternoon I just have maybe 1 small katori of sprouts. I come home, have my 2 or 3 rotis with 1 green sabji and salad, and in the night I have a bowl of fruit. This is my food. Now, there is no place for junk in this, because if I eat junk, I know I will not be able to teach. I'll be sleeping. All of us, we make it a fashion that we have to drink.
Let me tell you, I'm a police officer sitting right in front of you. I've never taken a drink all my life. The reason being, anything which is bad for my health, I will not take. I will not smoke. I will not drink. I will eat only that food which I know is healthy for me. Step number 2. I want you to have a healthy body, the healthiest body. For this, morning when you get up, please for half an hour, give your body your fresh air. Fresh air sharpens my mind. I go to my balcony, I do half an hour of deep breathing. Or if I have the luxury, I go for a quick stroll or a quick walk or a quick run. Even today, I go for a small run so that my lungs get proper oxygen. Whenever you are feeling tired, go out into the open, take deep breaths, give more oxygen to your brain. That's second thing. Third, the third aspect is the most important aspect. And that aspect is think positive. This is the most difficult thing to do, but the most important thing to do. We have a lot of kachara in our minds. We always have cluttered minds. ये नहीं होगा तो मैं हम 90% तो ये नहीं होगा तो वो होगा, ये नहीं होगा तो हम फ्यूचर में जीते हैं. लर्न टू लिव इन टुडे, फॉरगेट अबाउट टुमारो. गॉड इज देयर. इफ यू आर वर्किंग हार्ड, कहते हैं ना, जब इंसान मेहनत करता है तो भगवान पृथ्वी पे उतर के उसकी मदद करता है. सो प्लीज रिमेंबर, देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. Think positive. I don't want you to have any negative energies. When I started teaching, when I gave up IPS, everybody said पागल हो गया है. I was the most celebrated IPS officer. They said पागल हो गया है, छोड़ रहा है. लोग सिपाही की नौकरी नहीं मिलती, ये डीजी की नौकरी छोड़ रहा है. But I knew what I was doing because I was positive that I'm going to take up another career, because at one point of time I thought I was vegetating. I must do something worthwhile in my life, and that was, and I am glad I took the right choice. From the word go, I started getting success because I was positive. I knew that I'm going to do it. So this is what I want you to have. You know that you are going to achieve your dreams. Nobody can stop you. And this is the most difficult thing, We always live in tomorrow. We will not live in tomorrow. Is my today secure? Have I done my bit today? When I sleep, do I sleep happy? I will sleep happy if I have done my job. आप सारा दिन मत पढ़ो. सोते वक्त आपका दिल आपको गिल्ट बोलेगा कि तुमने आज कुछ नहीं किया, आज तुमने सारा दिन वेस्ट किया. और कोई बोले ना बोले, पेरेंट्स बेचारे चुप रहते हैं, कई बार बोल भी देते हैं, बट आपका दिल बोलता है. सो लिसन टू योर हार्ट, दैट इफ योर हार्ट सेज यू आर गोइंग द रॉन्ग वे, अगले दिन ही अपने आप को ठीक करो. सो नेक्स्ट एस्पेक्ट इज, I want you to have a balanced thinking. Who's a judge? Judge कौन होता है? Balanced. और ये मेरा, इसीलिए मैंने जो भी आपको बोला think positive, think balanced का रीजन है. मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी शुरू करा रहा हूं. जब आप मुंह खोलते हो, पता चल जाता है कि ये आदमी एक्सट्रीमिस्ट है कि बैलेंस्ड है. जज का सबसे बड़ा वर्च्यू क्या होता है? बैलेंस ऑफ माइंड. आर यू बैलेंस्ड इन योर माइंड? क्या आप नेगेटिव करते हो? कोई अगर आप खबर पढ़ते हो, कोई 2 कम्युनिटीज का राइट हो गया, क्या आप उसमें कहते हो हाँ ये कम्युनिटी तो है ही ऐसी? अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आर यू बीइंग अ जज? हैव यू एक्चुअली फाउंड आउट कि कौन गलती पे था? डू वी गिव वैल्यू जजमेंट्स विदाउट गोइंग इनटू फैक्ट्स? इफ द आंसर इज यस, चेंज योर माइंड. स्टार्ट बीइंग अ बैलेंस्ड पर्सन. एज जजेस, एज ब्यूरोक्रेट्स, वी हैव नो रिलीजन. We have absolutely no likes and dislikes. We go by facts. And then when we go by facts, we will follow what is the right path. That is why अभी से आदत डालोगे कि इंटरव्यू में पहुंचने के लिए ये बहुत जरूरी, दिस इज वेरी नेसेसरी, दैट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी इज द इंटरव्यू. That 35 minutes is such a difficult part that it is not only a test of your knowledge. In fact, it is not a test of your knowledge. Your knowledge has already been tested in your prelims and mains. It is a test of your personality. And that personality cannot be built in one day. That personality has to be built over a year or maybe years. That is why please don't forget this third point of mine.
Start thinking positive. Be aware. Why is the other person behaving like this? Awareness is the most important thing I want you to inculcate. Give up extremist viewpoints. Do not have any aspects based on emotionalisms. Go on facts. Hear everything patiently and then give your decisions. This, or please remember, judges are good people. Judges are balanced people. Judges are people. आज अगर किसी को दुनिया, आज इंडिया में किसी पे विश्वास है तो वो जुडिशरी पे है. कहीं भी चले जाओ, रिक्शा वाले को भी बोलो, वो कहता है तुझे कोर्ट में देखूंगा. वो ये नहीं कहता मैं तुझे पुलिस में देखूंगा. Because the reason is the other two pillars of our constitution have lost their confidence over a period of time, but the judiciary has not. The reason being their balance, they being good. अभी भी हम देख रहे हैं जो इतने हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स आ रहे हैं कोविड वगैरह पे, all are doing good. There is a lot of judicial activism going on. So please remember the 3 steps I've told you, the mindset. I can because I think I can. Second aspect, discipline. Third aspect, I'm going to think positive. I'm going to think balanced. I'm going to speak on facts. I'm not going to have extremist viewpoints. I'm going to look at things in their right perspective. That's the next point. Now, judiciary is like a battle. Battle means that you have to first prepare, you have to collect your arms and armaments. आप पहले अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करते हो. वो अस्त्र शस्त्र के तैयार क्या है? वो क्या है? पहला माइंड. What are the qualities of a judge? Man of integrity, balanced person. And once he goes on facts, he doesn't bother about anybody. Then he becomes fearless about everybody. Even his bosses can't change his decision because he is going on law, on the basis of law. Hardworking. All the aspects which I'm telling you are the attributes of a good judge. So this is why ये पहली चीज है. हम सब बोलते हैं how to succeed in judicial exams, ये पढ़ो, ऐसा पढ़ो ना, गलत. सबसे पहले माइंड को करो. First part. Second, I hope everybody is clear about the first part, which was the mental aspect of judicial exams. Now I go to the law part. How do I study a law? That is the most important aspect. कैसे मैं कोई भी लॉ कैसे पढ़ूंगा? सबसे पहले कोई भी लॉ ले लो. Take any law. Let's take, I have a bare act of Indian Evidence Act है मेरे पास. I have this. इसका पहले ethos समझो. What is this law about? First, understand the ethos of the law. Why has the legislature passed this law? सबसे पहले ये, हमेशा कोई भी लॉ उठाने से पहले उसकी स्पिरिट समझो, उसका लेजिस्लेटिव इंटेंट समझो. So now, once I've understood the legislative intent, then I open the law. I open the law means I open the contents. The contents are the most important thing to be mastered always. मुझे कुछ नहीं करना पहले, मुझे सिर्फ देखना है क्या, contents क्या है, what are the contents. When I say what are the contents, now firstly I'll make a skeleton. How many parts is Indian Evidence Act? What are the basic aspects? How many chapters? So first I will make a skeleton. How many parts? How many chapters? This is the first thing. Once I'm clear how many parts, how many chapters, now I will build a story that it starts from definitions, then it goes to relevancy, then it goes to documents, then it goes to burden of proof, then it goes to privileged communications, then it goes to witnesses, of witnesses, examination of witnesses. Khatam. 5 चीजें, 6 चीजें. So what do I need? What have I done? I have made a flow chart. So पहला पार्ट्स टोटल मास्टर करो, बार बार देखो, पार्ट 1 का ये है, पार्ट 2 ये है, पार्ट 3 ये है. ओके, इतने पार्ट्स हैं. ओके, पार्ट 1 में कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4. ओके, पहले पार्ट में क्या था? हर पार्ट एक अलग इथॉस के साथ होता है. उस एक पार्ट का इथॉस ले लो पहले.
नाउ व्हेनेवर आई से व्हाट इज इन पार्ट 2, आप फट से बता दोगे ये है सर, क्योंकि आपने अभी पढ़े नहीं, अभी सेक्शन नहीं पढ़े, सिर्फ मैंने कंटेंट की मास्टरी की है। सो सबसे पहले मैं कंटेंट की मास्टरी करता हूं। जब भी मैं पढ़ाने लगता था मैं कुछ नहीं करता था, बस कंटेंट को पढ़ता रहता था, छप जाता था मेरे दिमाग में, और अब मुझे पता है मुझे कहां से है। तो पहला मेरे को पूरा रोड मैप पता होना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं बीच बीच में सेक्शंस, ये तो इट इज लाइक गोइंग इनटू अ जंगल, जो कुछ समझ नहीं आ रहा। सो पहला काम क्या करना है, मैंने अपना फ्लो चार्ट पार्ट्स और चैप्टर्स का बनाना है, फिर मैंने उनके अंदर टॉपिक्स का फ्लो चार्ट बनाना है और वो याद करना है। अब उस फ्लो चार्ट को मैं बंद कर दूंगा, अब मैं अपने दिमाग में रिवाइज करूंगा। पहले पार्ट में क्या था, ये था रेलेवेंसी, कितने उसमें सेक्शंस थे, उसमें 4 सेक्शंस थे, ओके। दूसरा पार्ट ये था, उसमें क्या था, रेलेवेंसी थे, कहां से था, सेक्शन 5 to 55, ओके, ये था, खत्म। उसके बाद क्या था, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या है, पहले ओरल एविडेंस के 2 सेक्शंस हैं, फिर डॉक्यूमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, ओके, इतना 99 तक मेरा डॉक्यूमेंट्स है। एक फ्लो चार्ट, एक बार आपका फ्लो चार्ट क्लियर हो गया, तब आपको पता है मैं क्या कहां जा रहा हूं। पहले आप सीधा घर के अंदर नहीं जाते, पहले उसकी रास्ता उसकी टाउन पूछते हो, टाउन इज लाइक द पार्ट, टाउन के अंदर फिर उसके उसके सेक्टर पूछते हो, दैट इज लाइक अ चैप्टर, फिर जाके आप घर ढूंढते हो, गलियां ढूंढते हो। यही सिस्टम आपका यहां होना चाहिए। तो पहला काम आप, अब आपके में 5 सब्जेक्ट नहीं, सॉरी 6 सब्जेक्ट हम आपके शुरू हो रहे हैं 15 तारीख को, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, हिंदू लॉ, एसआरए एंड रेंट एक्ट, ये आपके हो रहे हैं, और प्लस लैंग्वेज पे मैं बाद में बात करता हूं। इन सब का फ्लो चार्ट बनाना शुरू करो। आज इनका पूरा का पूरा देखो, क्या इनके पार्ट्स हैं, क्या इनके चैप्टर, कुछ नहीं, अंदर नहीं देखना, अंदर कुछ नहीं देखना, मुझे दिखवाना ही नहीं, वो मैं कराऊंगा, बस मुझे सिर्फ फ्लो चार्ट बता दो। सर पार्ट 2 में ये था, पार्ट 3 में ये है, आई वॉन्ट दैट, पहला पॉइंट। नाउ एक बार आपका फ्लो चार्ट बन गया, फिर क्या करना है, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे हर चैप्टर के कौन से टॉपिक्स हैं। तो पहले मैं, अब क्या हो रहा है, मैं आई एम जीरोइंग इन फ्रॉम मेजर टू माइनर। मैं पहले मेजर पार्ट्स क्या हैं, ये मेरा लॉ है, लॉ में इतने पार्ट्स हैं, इस पार्ट का चैप्टर 1 ये है, इस चैप्टर 1 के टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, बस। अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिया, मोटे मोटे टॉपिक्स क्या हैं। अब टॉपिक्स क्या हैं, अब उन टॉपिक्स को मैं अब छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल के साथ हम पढ़ते हैं आज। सपोज आई टेक द टॉपिक ऑफ सीआरपीसी लेते हैं, चलो अभी आई टेक द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमने पहले पार्ट्स बना लिए, पार्ट्स के बाद चैप्टर लिख लिए, चैप्टर की मास्टरी हो गई। अब मैं आ गया टू द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन का पूरा चैप्टर 12 है, राइट। अब पूरा का पूरा चैप्टर 12 ले, एग्जाम्पल लेते। अब हमने पहले पार्ट ले लिया, पार्ट का चैप्टर ले लिया, चैप्टर हमारा। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, सी प्रोसीजर को हम थोड़ा सा डिफरेंटली लेते हैं। प्रोसीजर को क्या करते हैं, हम क्रिमिनल जस्टिस या सिविल जस्टिस सिस्टम के थ्रू चलते हैं, मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा। शुरुआत कहां से होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो पहला पॉइंट है, एफआईआर से या कंप्लेंट से। चलो वो खैर, वो लेट मी कम टू द डिटेल्स व्हेन आई कम टू। अभी हम एक चीज डिस्कस करें कि हम माइनर सब्जेक्ट्स, माइनर पार्ट्स कैसे पढ़ेंगे। तो अब जैसे मेरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, सबसे पहला उसका पार्ट है एफआईआर। एफआईआर पूरा टॉपिक है, तो एफआईआर को मैं अलग कर दूंगा, सेक्शन 154, बस। अब उस पर 1000 चीजें बनेंगी। और एफआईआर पे क्या क्या आएगा, ए क्या इज एफआईआर अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ ऑफेंस, लेट एफआईआर, व्हाट इज द सब्सटैंटिव, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एफआईआर, 1000 चीजें निकलेंगी, वो बाद में निकलेंगी। तो पहला हमने एक छोटा, एक सब टॉपिक, बड़े टॉपिक इन्वेस्टिगेशन में से सब टॉपिक निकाल लिया। उसके बाद हमने अब जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एफआईआर के बाद क्या होता है वो देखना है। एफआईआर के बाद सेक्शन 157 कहता है द आईओ विल प्रोसीड टू द स्पॉट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग।
इफ नेसेसरी अरेस्ट। अब यहां पे हम इंटरलिंक करेंगे अरेस्ट। तो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है अरेस्ट, सर्च, सीजर। तो मैंने अब इंटरलिंक कर दिया कि मुझे अब कायदे से सर्च, सीजर और अरेस्ट, अरेस्ट सेक्शन 41 में है। अब ये 154 से शुरू हुआ है। अब मुझे इंटरलिंक करके पढ़ना है कि इसके अंदर ये टॉपिक इंटरलिंक्ड है और मैं वहां जाऊंगा। उसके बाद मैंने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट, सर्च, सीजर कर लिया, वापस आ गए। 57 में हमने पेश कर दिया मुलजिम को, अक्यूज को। अब 167 में आ गए। सो अब अलग अलग टॉपिक्स। 167 में बेल मिलनी उसको लाजमी, पहला सेक्शन बेल का है। तो जब भी मैं बेल करूंगा, बेल का चैप्टर आएगा 437, तो इसका मतलब है मुझे इंटरलिंक करके पढ़ना है 167 के साथ, क्योंकि डिफॉल्ट बेल यहां मिलती है। तो अब मैंने इंटरलिंक करना शुरू कर दिया। ये खैर ये स्टेप नंबर 3-4 है, पर मैं बता रहा हूं कि आगे हमें बढ़ना कैसे है। नाउ अब हम पहले सारा वी विल मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहला एफआईआर, दूसरा अरेस्ट, सर्च, सीजर, उसके बाद वापस आ गए। 157 में हो गया, 157 के प्रोवाइजोज आ जाते हैं, कब वो रोक सकता है वगैरह वगैरह। उसके बाद 161, 162 सारा अलग अलग। अब 161, 162 एक अलग टॉपिक है, पूरा हमने अलग बना दिया। उसके बाद 164, अब वो पूरा अलग टॉपिक है। अब वहां पे नाउ वी आर गोइंग टू अ मैजिस्ट्रेट, उसका स्टेटमेंट हम मैजिस्ट्रेट के सामने करा रहे हैं, फुल वन टॉपिक। तो अब हम क्या करते जा रहे हैं, हमने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को पकड़ा हुआ है और उसके अंदर से एक एक टॉपिक को निकाल के उनको बड़ा कर रहे हैं, उनको इंटरलिंक करते जा रहे हैं। पूरी तैयारी हो रही है मेरी। उसके बाद उसके बाद इंक्वेस्ट तक जाएंगे हम, एक एक टॉपिक अलग बनाते जाएंगे। दिस इज अब मेरा इन्वेस्टिगेशन कनेक्टेड विद ऑल अदर मैटर्स इज रेडी। अब यहां तो हो गया इंट्रा लिंकिंग। इंट्रा मतलब एक ही, अब ये क्योंकि कोड है तो ऐसे सीपीसी भी मैं आपको ऐसे कराने वाला हूं, शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको सेक्शन के साथ कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर है, कौन सा और कॉरेस्पॉन्डिंग रूल है, वो सारा इकट्ठा करेंगे। ये तो हो गया बेटा द सेम लॉ। सीआरपीसी में हम एक दूसरे को इंटरलिंक करें। अब मुझे स्टेप नंबर अगला, मुझे इंटरलिंक सब्जेक्ट्स को करना है। दो सब्जेक्ट्स कैसे? अरेस्ट की बात की मैंने, तो अरेस्ट के अंदर मैं एक लाइन लिख दूंगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेस्ट, प्रिवेंटिव अरेस्ट एंड अरेस्ट आफ्टर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अरेस्ट ऑफ कोर्स इज अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट अरेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन में चला गया। और उसके बाद मैं उसको लाके लिखूंगा अरेस्ट इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन वेदर इट इज सीपीसी। अब मैंने अरेस्ट के प्रोविजन थोड़े से लिख दिए सीपीसी के, कमिंग बैक टू सीआरपीसी एक बस लाइन लिख दी मैंने सीपीसी के ये सेक्शंस, और एक मैंने आर्टिकल 21 माय राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड आर्टिकल 22 मेरे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का हवाला दे दिया। अब मेरा डायमेंशन, बहुत सारे डायमेंशंस हो गए। एक ही टॉपिक में मैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी चला गया, मैं सीपीसी के अरेस्ट में भी चला गया, और अब मैं क्रिमिनल लॉ के अरेस्ट में भी चला गया। क्रिमिनल लॉ में भी मैं दो पार्ट्स में चला गया, प्रिवेंटिव अरेस्ट एज वेल एज अरेस्ट आफ्टर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ये डेप्थ चाहिए मुझे, इस तरह से डेप्थ। दिस इज हाउ विल बी टेकिंग। अब उसके बाद नाउ, अब जब मैं एक टॉपिक लिख रहा हूं, अब कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल आज मैं ले लेता हूं अरेस्ट के ऊपर। जब मैं अरेस्ट कर रहा हूं, जब अरेस्ट का टॉपिक कर रहा हूं, 41 से मैंने शुरू कर दिया, व्हाट आर द लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट। आई वांट टू नो द लैंडमार्क जजमेंट्स। अरनेश कुमार, बहुत है, अभी बहुत सारे आए हैं, देयर सो मेनी, डीके बासु। नाउ आई वांट टू, व्हाट आई विल डू इज, उस टॉपिक के ऊपर मैं अब सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स ऊपर टाइप करूंगा। तो अब मैं क्या करता जा रहा हूं, मैं अपना एक फ्लो चार्ट बनाता जा रहा हूं, साथ साथ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, आई एम राइटिंग द जजमेंट्स साइड बाय साइड। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल अब लेटेस्ट जजमेंट्स है, जैसे अभी 2021 का 167 पे आया है गौतम नवलखा का, मैं वो लिखूंगा। अब जो 2021 की हैं जजमेंट्स या 2020 की हैं, जैसे एक 173 क्लॉज 8 पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे एक लैंडमार्क जजमेंट आया था विनू भाई का, विनू भाई हरिभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब वो कई बार क्या होता है, ऐसे नए जो आते हैं पूरा क्वेश्चन उस पर आ जाता है, तो मैंने वो तैयारी की हुई है। आप चाहे मेरे पे, चाहे सिर्फ विनू भाई पे पूछ लो, मैं तैयार हूं।
और नहीं पूछ रहे तो मैं अपने आप बता रहा हूं आपको। ये मुझे एक तरह से आई एम पुटिंग जैसे कहते हैं ना खीर के अंदर पिस्ता बादाम, दीज लैंडमार्क जजमेंट्स हैव टू कम लाइक पिस्ता बादाम इन योर खीर, इस तरह चलाना है। ओके, so now what happens is you have first started with your main parts, you have come down to the chapters, and in the chapters you have written the important topics, and now in these topics you have interlinked them. After interlinking them, you have put in the major judgments, the Supreme Court judgments. See, please don't go for latest judgments. अगर एक ही चीज सपोज सेक्शन 34 का बरिंदर कुमार घोष 1925 का है, अगर कोई आज सुप्रीम कोर्ट उसी चीज को रिन्यू करता है तो व्हाट इज अ बिग डील? अगर 2021 में कर रहा है, वो बरिंदर कुमार घोष को ही रीइटरेट कर रहा है ना सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे तो बरिंदर कुमार घोष ही बताना है। सो गेट आउट ऑफ दिस हैबिट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, सर लेटेस्ट जजमेंट क्या करूं मैं, वो तो मुझे पता है 1925 से वही चल रहा है। लेटेस्ट जजमेंट अगर कोई चेंज हो रहा है, इफ यू आर फाइंडिंग एनी चेंज, देन ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट। तो डोंट गो फॉर दिस थिंग। मैंने देखा है स्टूडेंट्स खोल के बैठ रहे हैं, सर मैंने 2021 की जजमेंट ले आया, तो उसमें क्या नया चीज आ रही है? नहीं सर, है तो वही 1925 वाली, सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट की है। सो आई वुड लाइक यू टू राइट 1925 बरिंदर कुमार घोष के 2021 में जी वो यही कह रहा है कि बरिंदर कुमार घोष सही कहता था। सो व्हाट डू विल यू राइट? सो ये चीज गेट आउट ऑफ दिस हैबिट। यू डोंट हैव टू सर्च, मैं आपको देने वाला हूं। आई डू दैट हार्ड वर्क। आई गिव यू एवरी जजमेंट ऑन, ज्यादा ही देता हूं मैं, ताकि चलो एक भी टिक जाए, वो भी काफी हो जाती है। सो एक चीज ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया। यू आर गोइंग टू राइट द फर्स्ट, पहला स्टेप आपका क्या है, जो शुरू करने से पहले पूरा फ्लो चार्ट बनाओगे पार्ट्स का, चैप्टर्स का और उनके मोटे मोटे टॉपिक्स। फिर जब मैं पढ़ाई शुरू करा देता हूं, तो नाउ वंस वी हैव स्टार्टेड, देन व्हाट डू? यू देन start writing my notes. I go fast in my class in the sense that you have to write your notes regularly. When you write your notes, you are writing in detail. मैं आपको इतना डेटा दे दूंगा, इतना लेटेस्ट दे दूंगा, और उसको मैं ये भी बताता हूँ इस पे ये क्वेश्चंस फ्रेम होंगे और इसका जवाब इस तरह से देना है, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से शुरू करना है। Now when I tell you all this, you have to make your notes. Right? एक तो आदत पड़ जाएगी तेज लिखने की, साथ साथ फटाफट लिखना है, और लकीली आपको क्योंकि रिकॉर्डेड भी मिल रहे हैं मेरे, तो कुछ मिस हो जाए तो उनको करो। उसके बाद फ्राइडेज को क्या करना है? यू हैव टू रिवाइज। हाउ डू यू रिवाइज? सर ने 4 दिन में सीपीसी में हमें ये पढ़ाया, रेस जुडिकाटा के ये पॉइंट्स पढ़ाए हैं, बंद करो। सी, देख के नोट्स बनाना तो फिर क्या हुआ, वो तो फिर देख के तो वहां भी है, वो नहीं मुझे चाहिए। आपने पढ़ा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बंद कर दिया। आफ्टर यू रिविजन, आफ्टर यू डन रिविजन, नाउ यू स्टार्ट राइटिंग, ओके, आउट ऑफ योर मेमोरी। हमेशा जो बोलता है, ऑडियो विजुअल मेमोरी हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो व्हेन यू आर लिसनिंग टू मी, यू विल रिमेंबर। नाउ व्हेन यू आर रिमेंबरिंग, सर ने ऐसे बोला था, हाँ ऐसे बोल रहे थे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहे थे, सारा पॉइंट लिख लिया। अब खोलो दोबारा अपने नोट्स, क्या मिस कर गए वो ऐड करो। जब आपने देखा कि अब आपको जो लिखा है वो याद भी हो गया, फिर एक कागज लो जिसको मैं कहता हूं स्केलेटन कागज। नाउ यू राइट डाउन द पॉइंट्स। अगर टॉपिक चल रहा है तो टॉपिक पॉइंट वाइज, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, एक स्केलेटन फ्लो चार्ट जो मैंने पढ़ाया है उसका स्केलेटन फ्लो चार्ट, और नीचे आज की इंपॉर्टेंट जजमेंट। नाउ कीप ऑन रिमेंबरिंग दैट डे इन एंड डे आउट। जब आपका सीपीसी खत्म हो जाएगा, मेरा सीआरपीसी शुरू हो जाएगा, तो फिर सीपीसी भूल जाओगे। तो अगले, अब आप इतनी बार रिवाइज करो। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार वो चीज पक्की हो जाएगी। कीप ऑन रिवाइजिंग। बंद कर दिया, ओके, आज सीआरपीसी पढ़ना शुरू हो गया, ओके, आई स्टार्टेड रिवाइजिंग। 1 मिनट बंद किया मैंने अपना स्केलेटन। अब स्केलेटन के इतने सारे बस 40-50 कागज होंगे आपके, सारी सीपीसी 40 पेपर में आ जाएगी। और वो मैंने खोला, अरे यार मैंने रेस जुडिकाटा में सर ने क्या पढ़ाया था, एक बार देखता हूँ। अपनी ही आपकी राइटिंग है, अपना ही स्केलेटन बनाया हुआ है, जैसे ही देखते हो अरे हाँ याद आ गया। 10 मिनट्स में एक टॉपिक अपना स्केलेटन देख लिया, खत्म। सीपीसी सीआरपीसी 2 ग्रंथ हैं हमारे, वो साथ साथ इकट्ठे तैयार हो जाते हैं। सो डोंट गिव अप। व्हाट वी डू इज, एक खत्म हो गया, चलो स्यापा मुक्या, अब हम आगे चलते हैं। रॉन्ग। जो आपने कर लिया उसको फोर्टिफाई करो। We have actually 5 papers.
We have law 1, law 2, civil law 1, then we have mostly the family law, and then the criminal law, and then 2 language papers. Now, इसको बराबर का टाइम देना है आपने. Give equal time. That is my paper 1 ready? हरियाणा में फेल क्यों हुए सारे बच्चे? मेरे बच्चे पास हुए थे क्यों? सीपीसी में सब फेल हो गए थे. 6 में से 4 बच्चे हमारे, 4 लड़कियां थी, वो चारों सीपीसी की वजह से निकल गई. नाउ आप इतने पक्के हो गए, कुछ भी पूछो, क्योंकि मैं आपको एक एक वर्ड कराऊंगा. मैं भी नहीं, मेरे जितने एजुकेटर्स हैं, दे विल बी डूइंग ईच एंड एवरी वर्ड विद यू. So when every word is being done, nothing is left to imagination. So that thing you have to remember. Now, once you have built a skeleton notes, so you will have 2 types of notes. One, my class notes, जो आपकी हमेशा के लिए वेल्थ है. आप जज भी बन जाओ. आज भी बहुत सारे जज हैं जो मेरे आज भी मेरी वो नोट्स खोलते हैं जब भी कोई कंफ्यूजन होता है, जजमेंट्स देखते हैं, एंड दे नो कोई वकील जो पुराने हैं, उनको मेरे स्टूडेंट्स को कोई बेवकूफ नहीं बना सकते. इनफैक्ट दे आर स्केर्ड ऑफ माय स्टूडेंट्स बिकॉज दे नो लॉ. सो इसीलिए सबसे पहले एक मेरे नोट्स हो गए, उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. आपके पास मेरे लेक्चर्स सेव्ड हैं, उनको जो साथ साथ लिख लिया गुड इनफ, साथ लिखना है. नाउ डोंट हैव दिस हैबिट कि पहले सुनते हैं बाद में लिखेंगे. इसका मतलब है आप 2 बार वेस्ट कर रहे हो टाइम. साथ साथ लिखो, समझ लो. उसको लिखने एक बार आप अपने हाथ से लिखते हो, 50% यहां आ जाता है आपको. अब ओके, 50% समझ आ गया. मेरा अब लेक्चर रिवाइंड करो और देखो, और फिल इन द ब्लैंक्स. खुले खुले नोट्स लिखो. व्हाइट पेपर्स में ऐसे यूज करता हूं, खाली कागजों पे लिखो. एक कागज, पिछले वाला कागज खाली छोड़ते जाओ, जो कुछ है उसमें ऐड करते जाओ. आपके नोट्स तैयार हो गए. आधे तो मेरे साथ बोलते बोलते हो गए, आधे बाद में हो गए. उसके बाद आपने फ्राइडेज को, जब भी आपको टाइम मिलता है, आपने उसी चीज का, जो मेरा आज का टॉपिक है या ये 4 दिन का टॉपिक है, आपने 2 पेज में स्केलेटन बना लिया. ये आपका रिवीजन नोट्स है. जब आप एग्जाम में होते हो, घबराए होते हो, तो इतने नोट्स देख के तो टेंशन हो जाती है. क्योंकि मेरे सीपीसी पे करीब, मुझे बता रहे थे बच्चे, 14-15 रजिस्टर भर जाते हैं. सीआरपीसी ऐसे बहुत सारे रजिस्टर भरते हैं. तो वो तो फिर आपको देख के उस टाइम बुखार आएगा कि इतने सारे कैसे खोलूं. तो बेटर क्या है, अपना स्केलेटन उठाया, इतना सा होगा, ओके, इस टॉपिक पे ये, इस टॉपिक पे ये, डन, आता है मुझे. साथ बेयर एक्ट. आई वांट यू टू मास्टर ओनली 2 थिंग्स. द बेयर एक्ट, कहीं से ऊपर नीचे से कहीं से मैं कुछ पूछूं, आपको आना चाहिए. A, B, your skeleton notes. Whenever you have any confusion, refer to my notes. Page your number, numbering करो इन शीट्स की. और अपने स्केलेटन में कुछ कंफ्यूजन है कोई, तो उसमें नंबर लिख दो, पेज नंबर सो एंड सो ऑफ माय क्लास नोट्स. तो क्लास नोट्स, योर ओन स्केलेटन नोट्स एंड बेयर एक्ट, जज का मसाला तैयार है. ओके, नाउ एक जो क्वेश्चन बहुत बार मुझे बच्चे पूछते हैं, सर हाउ टू रिमेंबर सेक्शंस का बहुत हुआ होता है. बहुत सिंपल है. व्हाई? इफ यू हैव बिल्ट अ फ्लो चार्ट, तभी मैंने कहा था पहले फ्लो चार्ट बनाओ. फ्लो चार्ट के बाद उसके अंदर टॉपिक ढूंढो. सपोज लेट्स टेक अ टॉपिक, लेट्स टेक आईपीसी. मेरा फ्लो चार्ट क्या है आईपीसी का? पहले 120 सेक्शंस क्या है? जनरल चीजें. Yes, I'll be teaching in Bear Act. Beta, please ask questions a little later. Now, what we do, we IPC लेते हैं. पहले 120 sections. मैं अब क्या करूंगा, उसके 120 sections में पहले definitions हैं. Definitions एग्जाम में नहीं आती, प्रीलिम्स में आती हैं. उसके बाद आता है मेरे पास principles, section 34. उसके बाद आगे punishments. उसके बाद पनिशमेंट्स का एक चैप्टर अलग है. एक टॉपिक मेरा आ गया पनिशमेंट्स, एक टॉपिक आ गया मेरा 34. उसके बाद जनरल एक्सेप्शंस आ गए, सेक्शन 76 से लेकर 106 तक. जनरल एक्सेप्शंस एक पूरा टॉपिक है, इट्स अ मेजर टॉपिक. अब उसको मैंने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया. जनरल एक्सेप्शंस में मिस्टेक, सेक्शन 76, 79 खत्म. जनरल एक्सेप्शंस में जज, 78, 79 खत्म. जनरल एक्सेप्शंस में बच्चा, 82, 83 फिनिश. जनरल एक्सेप्शंस में इंटॉक्सिकेटेड पर्संस, 85, 86. कोरिलेट, रट्टा नहीं मारना. मैं भी नहीं मार सकता हूं, मुझे आज भी कोई पूछे मैं तो ब्लैंक हो जाऊं. मैं याद करता हूं.
मैं को रिलेट करता हूं कि पागलपन 84. आई एम एक्सटेंडिंग द क्लास. ओके, उसके बाद कंसेंट. फाइन, नाउ आई गो टू कंसेंट. 89 से शुरू हो गया, सो 87 से, तो हम वहां से शुरू हो गए. ऑल कंसेंट सेक्शंस. उसके बाद हम आ गए प्राइवेट डिफेंस. 96 से शुरू हो गया. प्राइवेट डिफेंस में डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, चार्ट्स, फ्लो चार्ट. अब जैसे जैसे फ्लो चार्ट बनाओगे उसके साथ साथ सेक्शन लिखते जाओ. अब फ्लो चार्ट, अब इसको ऐसे मत याद करो कि उस सेक्शन में क्या है, ये बोलो पागलपन कहां है, 84 में है. उल्टा पढ़ो. हम क्या होता है जब सेक्शन देखते हैं वो भूल जाते हैं, टॉपिक नहीं भूलते. बच्चे कहां हैं, 82 83. सो जस्ट कोरिलेट द टॉपिक्स एंड देन बिल्ड योर फ्लो चार्ट ऑफ सेक्शंस. कि मेरा, अच्छा जैसे मैंने बताया जनरल सेक्शन, जनरल एक्सेप्शन खत्म हो गया 106. 106 के बाद क्या है, बेटरमेंट शुरू. 107 से लेकर 119 तक खत्म. दैट्स इट. 120 में खत्म हो गया. अब अबेटमेंट का अब मैं आगे सब टॉपिक्स बनाऊंगा. उसका डेफिनेशन 107. उसकी पनिशमेंट्स, अब उसकी पनिशमेंट्स अगर एक्ट हो गया, अगर एक्ट ना हुआ, अगर डिफरेंट एक्ट हो गया, ऐसे टॉपिक्स बनाता जाऊंगा, सेक्शन लिखता जाऊंगा. जब मैं फ्लो चार्ट देखूंगा तो मैं सेक्शन बार बार देख रहा हूं को रिलेट करके उसके टॉपिक के साथ. याद हो गया मुझे. उसके बाद अब मेरा आईपीसी शुरू हो गया, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट. 121 से शुरू हो गई, या उससे पहले कॉन्स्पिरेसी आ गई. तो मैंने क्या किया, 34 कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट 107 से शुरू हो गया, 120 ए कॉन्स्पिरेसी, और 141 से कॉमन ऑब्जेक्ट का शुरू हो जाता है, अनलॉफुल असेंबली. ये 4 जनरल प्रिंसिपल्स हैं, इनको मैंने अलग कर लिया. याद हो गए. व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट माय स्टेट, स्टेट के ऑफेंसेस, पहले स्टेट के ऑफेंसेस आ गए 121 122 123 वगैरह. फिर स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है, पब्लिक सर्वेंट्स. पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ ऑफेंसेस, कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स. पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा ऑफेंसेस, बाय सेक्शंस हो गई. सो यू नो, कोरिलेट, एक स्टोरी बनाओ, एंजॉय योर लॉ. प्रॉब्लम क्या होती है, वी आर नॉट एंजॉइंग आवर लॉ. हम एक मुसीबत समझ के पढ़ रहे हैं. मैं एंजॉय करता हूं, एक कहानी बनती है मेरी. वो कहानी मैं बार बार अपने दिमाग में जब पढ़ता हूं तो मुझे एकदम लगता है वाओ, ये तो बड़ी प्यारी चीज है. सो मेक अ स्टोरी इन योर माइंड एंड गो एज पर दैट स्टोरी. वो स्टोरी को बना के फ्लो चार्ट, एक टॉपिक का फ्लो चार्ट. सो कितने फ्लो चार्ट्स हो गए मेरे. एक मेरा जनरल यूनिवर्स का फ्लो चार्ट, ये सीपीसी में ये है, पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसके, तो पार्ट्स एंड चैप्टर्स. उसके बाद सेकंड फ्लो चार्ट मेरा टॉपिक्स. थर्ड फ्लो चार्ट टॉपिक के अंदर का फ्लो चार्ट. तो मेरे 3, तो पहला बड़ा फ्लो चार्ट, फिर उससे कम, फिर उसका अंत. तो आई एम जीरोइंग इन ऑन टॉपिक्स. मेरे टॉपिक्स तैयार हो गए, पूरा मेरा लॉ तैयार हो गया, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है. एवरीथिंग इज रेडी वंस. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग प्लीज, जो आपका मैंने आपको बताया आप स्केलेटन बनाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. स्केलेटन मींस रिवीजन. आई वॉन्ट यू टू रिवाइज वंस ट्वाइस थ्राइस. बंद करके क्या याद आ रहा है, ये याद नहीं आ रहा, लेट्स सी सर का क्या था, हाँ ये मैं अपने स्केलेटन में. आपका स्केलेटन मेरी पूरे नोट्स का रिफ्लेक्शन 2 पेज में है. पूरी सीपीसी आपका 20 पेज में 30 पेज में आपने स्केलेटन बना लिया. इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लिख लिए, शुरू हो गए, खत्म. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आई टेल यू, यू नो मेरी अगर आप देखें सीपीसी कोई भी लो, देखो सारी की सारी कलर्ड है, हाईलाइटेड है, पेपर नोट्स हैं, ग्रीन कलर, ये रेड येलो कलर, सारा मैं कलर करता हूं. क्योंकि क्यों, मुझे देखते ही नजर आ जाता है कि मैंने ये एंगल से मैंने कलर किया हुआ है. हाईलाइट करना शुरू करो. कोरा बेयर एक्ट तो मुझे बिल्कुल टेंशन देता है. कलर इट अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग, कि ओके ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं ग्रीन में कर रहा हूं, ये चीज येलो में कर रहा हूं, ये रेड में कर रहा हूं, साथ में मैं नोट्स नहीं, छोटा पड़ रहा है, बेयर एक्ट बड़ा तंग लिखा होता है. स्टिकर लगाओ, यू नो दीज स्टिकर्स, जैसे ये होते हैं जो हम चिपका देते हैं, स्टिकर्स. मैंने भी देखो सारे स्टिकर्स लगाए हुए हैं, उसके ऊपर चिपका दिया, सर ने ये चीज बोली थी ये. और यहाँ साथ साथ मैं बोलता हूँ ये सेक्शन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में रेड में पी लिख दिया, एक नजर में आ गया आपको. सो यू नो दीज आर ऑल ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. ओके,
नाउ उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, वंस मेरा एक बार शुरू हो गया, यू हैव टू सेट योर टारगेट्स बनाओ। मुझे इतने दिन में ये खत्म करना है, मुझे इतने दिन में ये वाला टॉपिक मेरा तैयार होना चाहिए। इफ यू डू नॉट फॉलो योर टारगेट, व्हाट इज रॉन्ग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, चाहे रात भर बैठो। दो आई वुड नॉट एडवाइज, क्योंकि जो रात को बैठता है अगला दिन वेस्ट होता है, उस पर ज्यादा मेहनत करो। अपने टारगेट्स खुद अपने आप अपने लिए रखो और उनको फॉलो करो, और वो करते करते आप नेचुरली ऑटोमेटिकली सारा कवर हो जाएगा। नाउ यू नो, अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा लैंग्वेज के हमारे 2 पेपर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हमारा जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है। लैंग्वेजेस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रामर और एक होता है एसे। इंग्लिश का एसे 100 नंबर का आता है और लोकल लैंग्वेज का 50 नंबर का, 150 नंबर का एसे है। एसे कैसे करोगे? एसे इज नॉट ओनली लैंग्वेज, एसे इज ऑल्सो कंटेंट। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है और लैंग्वेज सबसे अच्छी है आपकी, तो क्या फायदा होगा? सो पहला एस्पेक्ट वो, हाउ डू वी इंक्रीज। अब मेरे ठीक है, टीचर्स विल बी टीचिंग यू लॉट ऑफ एसेस, पर जरूरी थोड़ा ना कि वो 10 20 25 एसे में से ही आ जाए। आजकल तो बड़े वाहियात से ऐसे आ रहे हैं। उसके लिए क्या करना है? पहला पॉइंट, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग 2 न्यूज़पेपर्स, एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर, और अगर आप हिंदी वाले स्पीकिंग बेल्ट में हो तो हिंदी, पंजाबी जो दे रहे हैं पंजाब में पंजाबी। सो यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। इन द न्यूज़पेपर व्हाट डू यू रीड? Only go to the editorial page. No, nothing else. Go to the editorial page and see what are the articles. The articles, if they are political, forget it. Sports, forget it. But now, suppose we are getting articles on COVID, we are getting articles on common person, suffering of a common person. Now start writing, read it, make a précis. Write down the important points. गुड लैंग्वेज, गुड वर्ड्स। यू नो, जब मैं IAS सिविल सर्विसेज दे रहा था, तो मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ था जहां मैं हिंदू पढ़ता था, तो हिंदू में से जो अच्छे फ्रेजेस होते थे, आई टू कॉपी देम, और बार बार उनको पढ़ के मैं अपनी वोकैबुलरी का पार्ट बना लिया। इवन द बेस्ट पर्सन आई फाइंड, शशि थरूर, हिज इंग्लिश इज वेरी गुड, आई हैव नोन हिम वेल, ही आल्सो डिड द सेम थिंग। ही यूज्ड टू रीड द डिक्शनरी, रीड द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और उनको रजिस्टर बनाते थे वो, जिससे उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाती थी। So that is what you have to start. Only editorials and non-political articles start making. Write down the points, and then after you write down the points, अच्छा कोई बहुत अच्छा मिल जाए उसको कटिंग करके अपने पेस्ट कर लो, अपना एक रजिस्टर बना लो, and start writing at least 3 essays a week. 3 essays a week. अगर आप, your language teachers are outstanding, Ritu ma'am and Rajni ma'am will teach you very well. उनको grammar is something which I want you to grammar I want you to score 100%. तो वो 50 नंबर अगर आप ग्रामर के लेते हो, वो मैथमेटिकल होते हैं, उसमें मैक्सिमम मेहनत करनी है। That of course language teachers will be teaching you. So please make it a habit. और वो कब पढ़ो? शाम को जब आप थक जाते हो, लॉ पढ़ के पक जाते हो, तो फिर तो रात को लैंग्वेज करो। लैंग्वेज में मंथली, जो जैसे मैंने बोला, एडिटोरियल्स पढ़ो और रोज के रोज बनाओ। नाउ व्हाट डू वी डू अबाउट करंट इवेंट्स? करंट इवेंट्स रोज हर न्यूज में कोई कहाँ होती है, इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत टाइम वेस्टिंग भी है। आजकल बहुत सारे छोटे छोटे वो आते हैं, यू नो, लोकल करंट इवेंट के मैगजीन्स आते हैं, छोटे छोटे फैक्चुअल्स, जैसे यहाँ चंडीगढ़ में एक टिडबिट्स आता है, आई हैव सीन, वेरी गुड। ऐसा कोई एक हर महीने ले लो, उनका पढ़ो, जस्ट गो थ्रू देम एंड कीप ऑन अंडरलाइनिंग। बस एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ा, हो गया, स्टिक कर जाएगा। आपको ये सिर्फ प्रीलिम्स में आना है। प्रीलिम्स में जैसे ही आप मल्टीपल चॉइस देखते हो, वो याद आ जाता है, तो आपको बस 2-3 बार पढ़ना है, दैट इज ऑल। या कई बार आप अपने भाई बहनों से, यू नो, उनका टेस्ट ले सकते हो, चल तू बता मुझे ये अभी कौन सा, ये चाइना ने ऐसा क्या किया, ऑल दैट एस्पेक्ट्स। सो यू कैन कीप ऑन डूइंग इट लाइक दिस। नाउ अनदर एस्पेक्ट इज, when I said you think like a judge, your mental makeup, another aspect is you start dressing up like a judge. I don't want you to dress up cheaply.
Cheaply means, we all know what is cheaply. Doesn't mean expensive clothes. It means decent clothes. So make it a habit. As I told you, you have to think like a judge. You have to act like a judge. For this, you must wear proper clothes, decent clothes, clothes which you feel make you look like a judge. So that when you wear such clothes, you feel like a judge. I want you to, as I said, this is an important aspect. Now, another very, very important aspect is that I want you, now please listen to this very carefully. I want you to make groups. मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब मैं अपना सिविल सर्विसेज में अपेयर हो रहा था, तो हमारे 5 लोगों का ग्रुप था. हम, क्योंकि उस टाइम पे वी नेवर यूज्ड टू हैव नेट तो आप लोग लकी हो, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ते थे जाके. सो एंड वी यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स. हम 5 लोग दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ते थे और कॉफी पीने इकट्ठे जाते थे. एंड कॉफी पीते वक्त वी नेवर यूज्ड टू डिस्कस जो आप लोग करते हो. आई मीन, आई एम नॉट श्योर कि आप क्या कर रहे हो, बट नॉट मंडेन मैटर्स, बट वी यूज्ड टू डिस्कस द पॉलिसीज ऑफ द कंट्री. हम 1.5 साल हम इकट्ठे रहे. आप हैरान हो गए, पांचों के पांचों हम सिविल सर्विसेज में निकल गए थे. सुरजीत आईएएस में आ गया था, मैं और नवदीप आईपीएस में आ गए थे, अछरू इसमें आ गया था. all of them became. So all of us became judges. What do you want? Get out of this habit. आपको क्या लगता है, मैं अपनी नॉलेज नहीं बताऊंगा, इसको पता चल जाएगा, ये जज बन जाएगा, मैं नहीं बनूंगा. गलत. मैं सबको पढ़ा रहा हूं. 5000 बच्चों को पढ़ाया है मैंने, उनमें से सिर्फ 300 जज, 350, 400 जज बने. सो प्लीज रिमेंबर, अगर मैं एक ही चीज पर सबको पढ़ा रहा हूं, हर आदमी अलग तरह से सिमुलेट करता है. जिस दिन आप पेपर देने जाते हो, वी डोंट नो आपका मेंटल मेकअप क्या होता है. 10,000 चीजें होती हैं जो चेंज कर देती हैं सब कुछ. सो डोंट हैव दिस नेचर, मैं इसको नहीं बताऊंगा, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, ये जज बन जाएगा, मैं नहीं बनूंगा. गेट आउट ऑफ दिस. मैं आपके सामने बता रहा हूं, हम 5 लोग आपस में पूरा शेयर करते थे. पांचों हम, इट वाज वी वर इन द हेडलाइंस ऑफ ट्रिब्यून. पांचों हम 5 जजेस, 5 आईएएस आईपीएस इकट्ठे आ गए थे. सो एक ग्रुप बनाओ और ग्रुप में डिस्कस करो. ये टॉपिक हुआ है, चल एक काम करो, तुम हमें लेक्चर दो, हम तुम्हें क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, अगली बार मैं लेक्चर दूंगा, तुम क्वेश्चन पूछो. आई वॉन्ट यू टू हैव रेगुलर ग्रुप डिस्कशंस on every day basis. If you are not in one town, make your group. आजकल इतने हैं ना, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अपना उस पे नहीं तो जूम पे मीटिंग कर लो. जूम पे करके make it a habit. 8 o'clock is going to be our Zoom meeting and you have 4-5 students, जो या जितने भी, 3 भी 4 भी बहुत होते हैं. और एक ही चीज, मेरे इस बार जो जजेस बने हैं और सारे मेरे क्लास में थे, वो सारे ग्रुप्स में पढ़ते थे. आई यूज्ड टू नोटिस, क्योंकि मेरे पास ग्रुप का ग्रुप आता था, सर ये कंफ्यूजन हो गया, मैं आई यूज्ड टू क्लियर. सो मेक दिस हैबिट. ये कुछ गुर हैं जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ से देखे हैं, जिसके अंदर हम इजीली वी कैन डू इट. सो बेसिकली, एज आई सेड, माइंडसेट, A, B, your proper flow charts, major, minor, and then zeroing, and then comparisons, interlinkings, intra and inter. So I hope everybody must have gotten a bare idea कि कैसे हमें चलना है. सबसे जरूरी जो मैंने शुरू में किया, माइंड. यहां जज यहां बनते हैं. सबसे पहले ये मान लो, यू आर द बेस्ट इन द कंट्री. आई एश्योर यू दैट. 1 साल के बाद मैं ये गारंटी लेता हूं कि कोई अगर आपको कोई डिफीट कर पाए, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मेरी गारंटी आपको. बस पर पढ़ना जरूरी है, मास्टरी करनी है. वंस यू डू दैट, नोबडी कैन बीट यू. ओके, नाउ आई थिंक बिकॉज आई एक्चुअली वांटेड टू टेल यू हाउ टू राइट मेंस का पेपर, बट आई हैव रन आउट ऑफ टाइम. मैं एक और क्लास ले लूंगा विच आई टीच यू हाउ टू राइट. अभी शेयर कर शुरू भी नहीं हुआ हमारा. एक बार हमारा शुरू हो जाए, फिर मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा मेंस का अटेम्प्ट कैसे करना है. वो नेचुरली अलग है. पेपर 1 का अलग तरह से अटेम्प्ट होता है, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ का अलग तरह का पेपर, उसका जवाब देना होता है, और क्रिमिनल लॉ तो बिल्कुल ही अलग तरह से देना होता है. सो वी हैव 3 डिफरेंट वेज ऑफ अटेम्प्टिंग. आई विल बी टीचिंग यू ऑन ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस व्हेन आई एम देयर. ओके, नाउ लेट मी टेक योर क्वेश्चंस प्लीज. सर सेकेंड ईयर में हो, ओके, जो सेकेंड ईयर जो अभी लॉ कर रहे हैं,
संगीता, आई विल जस्ट, मैं अभी करता हूँ. ओके, यस यस, देयर इज टाइम फॉर क्वेश्चन, डोंट वरी, आई विल इंक्रीज इट. एलएलबी की पढ़ाई हिंदी में ज्यादा कठिन लगती है, पर इंग्लिश में अच्छा कमांड ना होने की वजह से उसके साथ आगे बढ़ने में भय मत रखो बेटा. कार्तिकेय, अगर आपकी नॉलेज है, कंसेप्ट क्लियर है, व्हाट इज नेसेसरी? कंसेप्चुअल क्लैरिटी. कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो कोई आपको पीछे नहीं कर. हो सकता है थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़े, 6 महीने ज्यादा होगा ना, बट मास्टरी आपकी होगी डेफिनेटली. आई एम श्योर अबाउट इट. नाउ दोज हु आर स्टिल परसुइंग लॉ, दे आर लकी बिकॉज दे कैन परसू इट फॉर 2 years लगातार. तो आपको क्या है, जब तक आपका, अभी आपके ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, बट आई एम श्योर हमारे ऑनलाइन क्लासेस फार डेप्थ में है, तो वो लगाओ, बट देन कीप इट ऑन एवरीडे बेसिस. वो लगा के, क्योंकि आपकी 1:30 बजे तक क्लासेस खत्म हो जाती हैं, उसके बाद शुरू करो और जितना कवर कर सकते हो करो. जो मिस हो जाए अगले साल, तो कुछ सब्जेक्ट बड़े बड़े चुन लो. सीपीसी इस साल कर रहे हैं, आईपीसी कर रहे हैं, तो जैसे 26 सब्जेक्ट हैं, 27 सब्जेक्ट हैं, तो ठीक है, 15 मैं पहले साल कर रहा हूं, बाकी 15 मैं अगले साल कर रहा हूं, इस तरह कर लो. ओके, बेयर एक्ट्स, यस आई विल बी टीचिंग बेयर एक्ट्स, मेन क्वेश्चंस, सब कुछ. इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ कराता हूं. इस पे ये क्वेश्चन आ रहा है पूजा. अंकित, माइंडसेट टू प्रिपेयर, चला गया, स्केलेटन्स बनाने. सी, माइंडसेट टू प्रिपेयर, आई थिंक यू आर आस्किंग अबाउट यूपीएससी. यूपीएससी इज अ डिफरेंट बॉल गेम, प्लीज. Absolutely different ball game. How will I improve my writing skills? Don't worry, we'll do it. The question, the messages are going so fast, I can't read them. Flow charts, sample of flow charts. अमन, मैं ये जब पढ़ाना शुरू करूंगा, मैं साथ साथ बताऊंगा आपको. मैं डिक्टेट भी करता हूँ फ्लो चार्ट्स. डोंट वरी अबाउट दैट. रिकमेंड एनी मंथली लॉ. बेटा बहुत सारी हैं जय, बहुत सारी मंथली लॉ मैगजीन. ये लॉ मैगजीन, सी, मोर देन लॉ मैगजीन, आई वुड लाइक टू गो फॉर करंट अफेयर्स जनरली. दैट आई वुड लाइक टू गो. Book suggestions. Tanvi, you don't have to read any book. If you're writing my notes regularly, no books are needed, only Bare Act is needed. Best book for pre. No, there are no books for pre. Galat. Don't go for pre. Any pre. Beta, I think you please post your questions on the question box. क्योंकि इतनी तेज स्क्रॉल चल रहा है, I'm not able to answer. सारे सब्जेक्ट्स आप ही पढ़ा. I wish I had the time, beta, but other teachers have been trained. They are very, very good. Who've already written means, how can they be benefited? One, बेटा उनको जिन्होंने पहला दे दिया है, 1 year के कोर्स से, ये है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं है तो कोई भी स्टेट का प्रॉब्लम आता है. Do we need to remember all sections? No. Only the sections which are occurring are important topics. That's all. I'm unable to follow. No. Why do you get depressed? If you are Gurdeep, if you are following your regimen, तभी मैंने कहा डिसिप्लिन में सब कवर हो जाता है. यू हैव टू गो बाय डिसिप्लिन. टिप्स फॉर एडीजे, सेम जो मैं आपको तैयारी कराऊंगा भारत, वो एडीजे की ही तैयारी कराता हूं. देन राइट इट फेयर अगेन. नो, यू डोंट हैव टू राइट फेयर अगेन. जस्ट राइट माय क्लास नोट्स एंड देन स्केलेटन नोट्स थोड़े बहुत फेयर करो. दैट इज इट. नो, स्केलेटन नेवर वेस्ट टाइम. एलएलएम हेल्प इन जुडिशरी? नो, नॉट एट ऑल. बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं है. आपको एलएलएम का एक बेनिफिट होता है, जब आप जज बन जाते हो आपको इंक्रीमेंट मिलता है बस एक. 3rd year में हिंदी मीडियम से है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर सुशांत. इवन इफ इट्स हिंदी मीडियम, कोई बात नहीं. यू कैन ऑलवेज, एज आई सेड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज अ मस्ट. वो इंपॉर्टेंट है. ऑन सेटिंग टारगेट्स, वरुण, आई विल बी गिविंग यू द टारगेट. जब मेरे शुरू हो जाते हैं मैं आपको बताता रहूंगा इतने इतने टारगेट्स करो एंड रिलैक्स द टाइम लिमिट्स. नो, देयर इज नो रिलैक्सेशन. अब इट्स अ कांस्टेंट जर्नी, उसमें कोई रिलैक्सेशन का टाइम बिल्कुल नहीं है. टाइम विच सेक्शंस वी नीड टू, यस, आई विल बी टेलिंग यू कि कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कराऊंगा. हिंदी में नोट्स कैसे बनाए? मैं बेटा काफी सारी चीजें, जैसे मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, इंग्लिश में डिक्टेट करता हूँ. व्हेन यू आर राइटिंग इन हिंदी, यू कैन राइट इन दैट बिकॉज आई टीच इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी विथ 6 सब्जेक्ट्स: सीपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, Hindu law, SRA, and Rent Act. CPC is too tough. Swati, you will love it. मेरा कल का लेक्चर सुनना everybody. By the way, tomorrow my lecture is on Master CPC in one hour. Any group for judiciary, you can make. हमारा एक Telegram. Now let me tell you, I already have a Telegram. Well, you can follow me on Unacademy as an educator. Follow me ताकि आपको सारे डिटेल्स मिलते जाएंगे. दूसरा एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है
You can follow that. UA Judiciary, UA Judiciary, अनिल खन्ना, ये इसको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, तो यू विल गेट दैट पहला। और एंड फॉलो मी ऑन माय एजुकेटर स्टेटस, तो उसमें भी आपका हो जाएगा। एंड ऑल्सो यू कैन, इफ यू लाइक, यू कैन गिव डेडिकेशंस ऑल्सो। हाउ मेनी स्टेट्स टू प्रिपेयर टुगेदर? बेटा वी मस्ट प्रिपेयर ऑल। हमें आई विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, ये तो मैं अभी तैयार करा रहा हूँ। रेंट एक्ट हम 5-7 हरियाणा भी करा रहे हैं, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल सब करा रहे हैं साथ में। मेन आंसर यस, आपका जो टेस्ट होगा वो हम खुद करेंगे। आपकी सुनेंगे हम कल, बोलेंगे आप बोलना, हम सर सुनेंगे। I'll try to do that. Check question form. I'm from UP. Okay, Aradhya. See, all basically 85 laws are the 85% laws are the same. So we will do that definitely. बिहार का बेटा let me see कौन से कोई local laws कौन से हैं. If we find the time, definitely we will try to. How to make interest in GK? Listen to news, Archana. Listen to news and then try to find. Net पे ढूंढो. Net savvy हो जाओ. At 32 I can clear. Yes, you can clear हरियाणा जुडिशरी। 34 साल के बच्चे इस बार मेरे निकले। There was a girl अभी last year हरियाणा में, तो 32 की बनी है वो। Working professionals, try to spend time in the evening. Try to take that. Shabaz, Jammu and Kashmir, all your laws have changed by the 2019 Reorganization Act. You must join this batch, क्योंकि सारा लॉ आपको ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाता है जम्मू कश्मीर का। अब तो आपका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। Vijayant, I will talk to ma'am. We'll see if we can also cover MP. मैं कराता हूँ इस बार. Okay. About Gujarati language. Let me see, beta, how many persons are joining for Gujarati language? We have a teacher. I can definitely rope her in for Gujarati. Okay. Gujarati. Let's see how many. Once we start, let me see how many students want to join Gujarati. I'll start Gujarati. I have a teacher, very good teacher from you. Should I continue in this journey? Of course. लेट नहीं है बेटा, आप और कुछ नहीं वरुण, कल को आप एडीजे बन सकते हो 35 साल में। तो अब इंडियन जुडिशियल सर्विस आ रहा है, द बिल इज ऑलरेडी ऑन द एनुअल, सो वी विल बी देयर। सेल्फ स्टडी टिल 15 जून। एज आई सेड, मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ योर बेयर एक्ट्स। सबसे पहले वो याद करो, मेजर वो करो। 13 months, yes, I hope to finish it in 13 months. As I haven't said, don't worry. No, don't worry, वो मैं एविडेंस का टेंशन मत लो, वो मैं करा दूंगा आपको, मैं करा देता हूँ। Oh, I will put your question. I'll just see those. Okay, I'll go to the questions put up in. There are 17 questions I'll cover. Team brother, how to self study? बेटा मैंने जैसा कि अभी बताया माधव कि you have to go in a disciplined way. और वो जैसा मैंने आपको बोला, you have to go on making flow charts. और जैसे जैसे मेरा शुरू होगा बैच, नेचुरली उसमें आप बहुत चार्ज जब हो जाते हैं, you will find better and better ways out. So you take on judicial preparation, sorry, yes, why not? 9 to 5 अगर आप जॉब कर रहे हो, 6 बजे वापस आके, सी इतना फर्क होगा कि अगर आप जॉब करिए, आप 1 साल में तैयारी नहीं कर पाओगे, 1.5 साल में कर लोगे, डजंट मैटर, एटलीस्ट आपका एम तो पूरा हो जाएगा। इंडियन जुडिशियल सर्विस इज कमिंग, और इंडियन जुडिशियल सर्विस की जहां तक मुझे पता है एज 29 रख रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ऑल ऑफ यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इंडियन जुडिशियल सर्विस। बेटा LLM में एडवांटेजेस है, ठीक है, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जुडिशरी। नॉट, इट डजंट मेक एनी हेल्प, क्योंकि जो हम डिटेल्स में जाते हैं उसमें LLM में ज्यादा कोई फायदा नहीं होता है। एक्सपेक्टेड डेट फॉर HPSC, बेटा इट्स $1 million क्वेश्चन, बिकॉज विद द न्यू, अभी कोरोना चल रहा है, मेरा एस्टिमेट है कि अबाउट 5 महीने लगेंगे, आई फील सो। लेट इवनिंग बेटा आपको, और आप सैटरडे संडेज को नितिन ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि उसमें आपको टाइम मिल जाता है। जैसे कि मैंने बोला, टाइम ज्यादा लग जाएगा, 1 साल की जगह आपको 1.5 साल लग जाएगा, बट एटलीस्ट यू विल बी मास्टर ऑफ लॉ। और ये सिंस दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर, नेचुरली वी विल बी गोइंग विद दिस ओनली। यस, मेक फ्लो चार्ट्स पुलकित, दैट विल बी द राइट वे। मूड कोर्ट इंटर्नशिप, बेटा कुछ भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, बट जहां आपको पास करने होते हैं इस तरह चलाओ कि आप मेजर अपना एम्फेसिस जुडिशरी की तैयारी में रखो, वो साथ साथ चलाओ। LLB में पास भी हो जाए तो उसका उतना ही फर्क होता है, जो टॉपर होता है उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की मास्टरी इंपॉर्टेंट है। सो कीप योर ऑप्शंस क्लियर दैट आई हैव टू कंसंट्रेट मोर एंड मोर ऑन जुडिशरी।
एनी टफ, हाँ बेटा मुझे वही सबको प्रॉब्लम आ रहा है वर्किंग प्रोफेशनल्स का, प्लीज कम एंड मेक अ रेगुलर चार्ट कि मुझे चलो 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ना है और सैटरडे संडेज को मैंने जो ये लैंग्वेज करनी है, तो इस तरह सैटरडे संडेज को पूरा दिन बिताओ आप, और इवनिंग्स में 3-3 सब्जेक्ट ले लो. सो देन स्प्रेड योर टाइम ओवर से 1.5 और 2 years. ऐसे मामलों में आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना, बिकॉज 2 साल फिर इजी रहता है, बेटर रहता है. यू आर इन थर्ड ईयर BLLB, तो इन दैट केस बेटा यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स. तो अभी हम जो आपको शुरू करा रहे हैं, मैं बिल्कुल बेसिक्स से मान कर चलता हूं कि आपको नहीं आता लो, तो मैं बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करता हूँ. सो दो यू विल हैव टू मेक, इनफैक्ट आपके सेमेस्टर में आप टॉप करोगे सारे. सर जो 15 से बैच शुरू हो रहा है उसमें सारे विषय एक साथ पढ़े, नहीं बेटा साथ साथ चलना है. यू हैव टू गो साथ साथ, 2-2 विषय नहीं लेना है. नो, एब्सोल्युटली नहीं तो इतना बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा कि आपको बाद में नहीं होगा. और इतना डिटेल में हम जाते हैं कि मैं बता रहा हूँ, पहले 15 दिन तो आपको लगेगा हो क्या रहा है. 15 दिनों के बाद आप मेरे साथ आंख मिलाना शुरू करोगे, 1 महीने के बाद आप मेरे साथ उड़ना शुरू करोगे. सो आई वॉन्ट यू टू फिनिश एवरी डे. सोते वक्त आपको सारा आपने करा कि नहीं वो सोच के चलना है, और अगर बैकलॉग हो गया है अगले दिन खत्म करना, और बाई चांस और लैग हो गया है तो फ्राइडेज को खत्म करना है. Amitoj, I think I have answered this question regarding professionals. Nitin also. I'll dictate notes in English. Yes, beta. Explain in Hindi. Of course, I will be explaining. आपको बता भी दूंगा, और आप मेरे को साथ साथ पूछ भी लेना अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रहा हो. प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स. ओके गुंजन, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रीलिम्स का तैयारी. कंसेप्चुअल क्लैरिटी, देखो पहले इंटरव्यू की तैयारी करो, एक एक चीज की आप डिटेल्ड करो. एक बार आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो गई, सॉरी मैं इंटरव्यू की तैयारी हो गई, लेट मी एक्सटेंड द क्लास. एक बार आपकी इंटरव्यू की तैयारी होगी तब मेंस की करो, प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा. वो गलत चलते हैं जो पहले प्रीलिम्स तैयार करते हैं, बाद में जाते हैं मेंस और इंटरव्यू के लिए, उसके लिए टाइम नहीं बचता. गलत, उल्टा है. पहले इंटरव्यू की तैयारी करो, फिर गो फॉर मेंस, प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा. टेक माय वर्ड, कुछ भी केक वॉक लगता है. मेरे जो बच्चे पेयर होते हैं 95% प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं. आई हैव टारगेट ऑफ MP, ओके बेटा, एंड छत्तीसगढ़. बेयर एक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, डोंट वरी. वो अच्छी है बट इंग्लिश अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा, डोंट वरी. संजय साथ साथ मुझे आप बताते रहना, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो विल डेफिनेटली क्लियर. राइटिंग स्किल बेटा बेस्ट होता है न्यूज़पेपर पढ़ो. कराती, कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, अपनी इंग्लिश बेटर करो, और तेज लिखने के लिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ लिखो. दैट इज द राइट वे. हिंदी मीडियम कोई बात नहीं बेटा, इवन इफ यू हैव डन इन हिंदी नो इश्यूज, राइट इन हिंदी. अगर आप कर रहे हो आफ्टर आई जंप इनटू इंग्लिश फॉर LLB, नो डोंट वरी. I know this is a problem which 80% students are facing, but when I teach, write in that language. Now you'll have to work little more hard, read newspapers, read my notes everyday basis, and try to improve. What is the approach for law as an optional UPSC? Ankit, I had law in UPSC, but please let me tell you, there is no good academy of UPSC. UPSC के अंदर 2 पेपर होते हैं. पहला पेपर प्योरली फिलोसफिकल होता है, कोई ऐसी किताब नहीं है जो पेपर 1 को कवर करती है, और इसीलिए लॉ के स्टूडेंट्स बहुत बुरा फेयर कर रहे हैं UPSC में. सो आई वुड डेफिनेटली से ट्राई टू, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके जो फिलोसफिकल पार्ट है वो आप लेना UPSC में. So the way I'll be teaching you the jurisprudence of every section मैं पढ़ाता हूँ, उसको एंगल से मैं आप देखना वैसे, because law की वजह से मैं IPS में आया था, and that is the reason, because we have to go very philosophically. Philosophical treatment होता है, analytical treatment होता है UPSC में. मैक्सिमम एज लिमिट तो बेटा हरियाणा में तो बहुत ज्यादा है, पंजाब में भी 37 है, हरियाणा में तो 40 तक चली जाती है. There will be GK बेटा अभी तक तो नहीं है दीप्ति. Let me see if I can talk to an academy, because they are running their UPSC. They can always give some GK classes maybe on Friday. Let me see. I'll take it up the issue with them. How not to lose motivation? हाँ बेटा ये बात पुलकित, you have to, this is a very tough battle. You have to always remain focused that मुझे करना ही है. जब भी फोकस लूज करो, जजेस को देखो जो जा रहे हैं, या कोर्ट्स को देखो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पढ़ो, मोटिवेट रहना है. इन एनी वे जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ मैं साथ साथ मोटिवेट ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे करता हूँ. मुझे पता है इट्स अ वेरी टफ एंड अ टीडियस जर्नी, आई डू इट. विजयपाल, आई विल बी गिविंग यू द स्ट्रैटेजी. मैं आपको मेंस के एंगल से लिखवाता हूँ, मैं आपको सारी तैयारी
मेंस के एंगल से ही कराता हूँ, so don't worry about that. What about students who have been studying out and in their hand and don't have? नहीं बेटा, I'm sorry Varun, I need 13 months. There is no shortcut to success. मेरा experience यही हुआ है. You need 13 months minimum, वो भी दिन रात. 29 is not the last age. I said 29 is probably the age जो Indian Judicial Service आ रही है, उसके लिए आ रही है minimum. तो Indian Judicial Service is coming. Next year आ जाएगी वो. एडिटोरियल ऑफ इंग्लिश, बेटा जो भी आपको अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा, वैसे मैं हिंदू पढ़ता था, या जो भी आपके यहाँ का बेस्ट पेपर हो, एडिटोरियल्स की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, तो बिल्कुल रीड दैट. ओके, वंशिका, सर वी हैव टू राइट द डिटेल्स ऑफ सेक्शंस इन फ्राइडे वर्जन नोट्स और जस्ट ना बेटा, अब आपको जब स्केलेटन लिखना है उसका इथॉस लिखना है प्लस द सेक्शंस, दोनों साथ साथ लिखने हैं अकॉर्डिंगली. ओके, any other? HPSC मैंने बोला बेटा, वी डोंट नो कितना कब आएगा. सर जो बैच शुरू हो रहा है विषय एक साथ पढ़े, ये वी हैव डन दिस. ओके, आई थिंक आई हैव covered all questions. I'll come to the messages. Okay, how many hours should be given? बेटा स्टार्ट बेर आर्ट की मास्टरी शुरू करो पूजा. बेटा जो अभी मैंने आपको बोले ये ग्रंथ हैं पूरे, शुरू करो, बेर आर्ट की शुरू करो. आनंद, व्हाट इज योर क्वेश्चन बेटा? व्हाट इज, आई एम सॉरी इतने सारे आ गए. थैंक यू वरुण बेटा, गॉड ब्लेस. इंटरव्यू फर्स्ट, यस इंटरव्यू फर्स्ट, मेंस बाद में. यस, इंटरव्यू नीड्स मास्टरी ऑफ एवरी वर्ड, इंटरलिंकिंग्स वो होता है अंकिता, दैट इज व्हाट आई नीड. ओके, इज एवरीबडी थ्रू एनी? ओडिशा बेटा, प्रेमानंद, वी विल सी 85% लैंग्वेज मेजर सब्जेक्ट्स इंडिया में सेम है, तो वो एक बार आपको समझ आ गया, माइनर एड्स आप खुद पढ़ने शुरू कर देते हो. टाइमिंग्स बेटा 9:30 रोज लैंग्वेज होगा. 9:30 लैंग्वेज, 11:30 मेरी CPC होगी, 1 घंटे की, आधे घंटे का ब्रेक, फिर IPC, आधे घंटे का ब्रेक, फिर रेंट एक्ट, आधे घंटे का ब्रेक, फिर मेरा एविडेंस. फ्राइडे ऑफ, सैटरडे संडेज को 2 मेरे हिंदू लॉ और 2 अमृत मैम के SRA. टाइमिंग्स ओके. IGS वुड बी इक्वल, थोड़ा बड़ा होगा बेटा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा. ओके, विल प्रिपेयर. यस, जजमेंट की मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा, डोंट वरी. सॉल्व ऑल. ओके भारत, थैंक यू. बेयर एक्ट, डोंट वरी. ये आनंद, इट इज, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. वी आर गोइंग टू मास्टर द लॉ एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू सुप्रीम कोर्ट लेवल. जजेस उस लेवल के बनोगे आप. डोंट वरी एट ऑल, आई विल बी टीचिंग यू, डोंट वरी. When you interact, all of us get that fire. Yes, you should keep that fire. That fire should keep on working. I should be the person जो पढ़ा के मुझे बोर हो जाना चाहिए, but I don't let that go anywhere. Fire ही बचाती है हमें. We all must have that fire. और जब हमारे में fire, हम हार ही नहीं सकते. अमन, I will teach you बेटा. इंटरव्यू तो मैं बहुत तैयारी कराता हूँ, महीना कराता हूँ, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, सब कुछ सिखाता हूँ. स्टेट जुडिशियल, हाँ, IGS आने के बाद स्टेट जुडिशियल एग्जाम रहेंगे, वो अलग है. थैंक यू श्रुति. सो कैन वी ब्रेक ऑफ? आई थिंक 1.5 घंटा हो गया. जुडिशियल ऑफिसर की थोड़ी लाइफ क्या बताएं, सो दैट डिसिप्लिन, वो एटीट्यूड हम अभी देखो बेटा. मैंने आपको मेरा लेक्चर रिवाइंड करके देखना, उठने से लेकर खाने तक, और रोज मर्रा एक ही टाइप की जिंदगी, एक रेजिमेंट बनाना है, उसके मुताबिक चलो. यहां तो आग लग गई फॉर एनी इंटरेक्शन. बेटा देन ज्वाइन, वरुण ज्वाइन कर लो, ज्यादा महंगा नहीं है, सबसे अच्छी चीज है अनअकैडमी की, बहुत सस्ते लेक्चर हैं इनके. यस अमन, देयर विल बी एक्स्ट्रा लेक्चर. मैं तो 1 महीना सबको बुला लेता हूँ और पूरा मैराथन चलते हैं मेरे इंटरव्यू के सेशंस. राजेश, क्या है बेटा आपका क्वेश्चन? आई एम सॉरी आई मिस्ड इट, प्लीज बेटा. थैंक यू ग्रेसी. बेटा राजेश, अपना क्वेश्चन आप पूछिए बेटा. मोस्ट वेलकम अंकिता, गॉड ब्लेस यू. ऑल ऑफ यू हैव टू बिकम जजेस. दिस बैच ऑफ माइन विल स्वे. पंजाब जुडिशियल सर रिलैक्सेशन बेटा, हाँ कई बार आ जाती है. देयर वाज अ रिलैक्सेशन, यस. Tanvi, the job of a teacher is to give you positive vibes. Because see, I'll tell you why. I have come through a competition and I am a successful person. I've always succeeded in life.
The reason, there must be some reason. Of course, God is always there, but the main reason is my discipline and my fire that I will do it. IPS officers are not supposed to teach, but then I had a fire कि I will teach and I'll teach the best in the country. मेरा fire है और मैं करता हूँ. ओके, ऑलरेडी डिड कोचिंग, कहीं सेल्फ स्टडी एलिमेंट खत्म ना आ जाए. नहीं वरुण, सेल्फ स्टडी साथ साथ रखनी है. हाउ कैन वी कनेक्ट. बेटा मैं जब अभी 15 को शुरू करूंगा ना, तो मैं आपको वहीं बोल दूंगा ऐसा बनाओ, तो मैं बनवा दूंगा. मुझे बस याद कराना पुनीत. आई मेक योर स्मॉल ग्रुप्स. आपस में आप जब बनोगे, इकट्ठे हो गए, तो बनते जाएंगे. आई ट्राई टू मेक ग्रुप्स while teaching you only. Yes, Tanvi, it's going to be a wonderful journey with me. We have all embarked on a journey, and this journey leads straight to judiciary. And there is no other option. I don't want to become ADAs and all. वो मेरे लिए शर्म की बात है. इनफैक्ट ADA बनते हो तो मैं मिठाई नहीं लेता हूँ आप लोगों से, मैं खाता नहीं हूँ. मैं कहता हूँ मुझे पहले जज का चाहिए. All of you, I'm training you to become a judge. I will not accept anything substandard than judiciary. Okay, somebody having confusion on this? What's the confusion? Will there be tests? Yes, every month, written and MCQs. Thank you, Shipra. What is the difference between judge and बेटा ये लॉ की बातें मैं आऊंगा, IPC पढ़ाने वाला हूं, उसमें सारा डिटेल में पूरा लेक्चर होता है मेरा. Thank you, Abhinav. Thank you, Sukhveer. Thank you all. Yes, all of you are going to make me proud. No, all of you are going to make yourselves proud. You're not. Nobody is more happy than you yourself. You're going to make your families. आप अपने फैमिली को ऊपर ले जाते हो जब आप जज बनते हो. God bless all of you. I hope all of you are charged up and you will start studying. Thank you. God bless you. Bye-bye. Tomorrow my class is at again 11 CPC in 1 hour. Bye-bye. God bless.